ছোটবেলা থেকে চানাচুর বলতে আমার একটাই পছন্দ, মুখরোচক, স্বাদে স্বাস্থ্যে। ভালো খান, সুস্থ থাকুন। মুখরোচক, ভালোবাসার 75 বছর। You were married earlier to निखिल जैन, फिर आपकी शादी यश के साथ हुई। ये सब ठीक है, लेकिन जब आपका बेटा पैदा हुआ तो मीडिया बहुत एक्साइटेड थी और वो जानना चाहती थी किसका बच्चा है। तो आपने जवाब दिया ये बच्चे का बाप तो देवशीष है। तो उसके बाद पता चला कि यश का असली नाम देवशीष है। तो ये क्या था, कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा नुसरत का पति? দিস ওয়াজ দি ফার্স্ট টাইম কলকাতায় এবং আমি যদি বলি টলিউডেও নিজেকে কেউ রোস্ট করতে দিচ্ছে, এই যে গার্ডস থাকাটা এবং এই যে সাহসিকতাটা, মানে সেটা যখন ফার্স্ট টাইম শুনেছিলে যে একটা ওপেন প্ল্যাটফর্মে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে সেটা অপমান বলবো, রোস্টিং বলবো, সবটাই সহ্য করে নেবে, বলো যেগুলো খুব লেগেছিল। এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু দারুণ, মানুষকে হাসানোটা কিন্তু একটা খুবই ভালো কি বলবো ইনিশিয়েটিভ। আর আমাদের কলকাতায় সেরকম মানে এরকম ধরনের শোজ খুব একটা হয় না, এবং এই অর্গানাইজেশন এই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে, আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি গুড ওয়ান। এবং আমি সাহসী কিনা জানি না, আমার জন্য পুরো বিষয়টা ভীষণ নতুন, যেহেতু নতুন তাই আমাকে খুবভাবে অ্যাট্রাক্ট করেছে। এবং কলাকুশলীরা রয়েছে বম্বে, যাদের আমরা দেখেছি, তাদের কাজ আমরা জানি, তারা স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে বা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে নিজেদের ফিল্ডে তারা দারুণ, তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারবো। এবং আমার মনে হয় জীবন আমাদেরকে না রোস্টিং কোথাও একটা এত রোস্ট করেছে যে যদি চারটে মজার ছলে যদি আমরা নিজেকে রোস্ট করি বা রোস্ট করতে দিই, তাতে কিন্তু কোনো দ্বিধাবোধ হওয়া উচিত নয়। যখন এই যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম, মানে তুমি একদম প্রিপেয়ার হয়ে গেছো, রেডি যে যাবে, সেখানে মাথায় কি কি চলছে যে কি হতে পারে? আসলে আমি নিজেও লুকিং ফরওয়ার্ড, আমি এক্স্যাক্টলি আই মিন ফর আ সারপ্রাইজ। আমি কিন্তু জানি না যে কী ধরনের ভয়ানক প্রশ্ন আমার কাছে, বিকজ দে হ্যাভিং আ পডকাস্ট উইথ মি, এবং পডকাস্ট মানে অনেকগুলো কথা হবে, কী কথা হবে, কীরকম কথা হবে সেগুলো কিন্তু আমার জানা নাই। এবার দেখা যাক আমি কীভাবে সেটাকে কমব্যাট করব। আমি কিন্তু কোনো প্রিপারেশন না নিয়েই যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস অন দ্য স্পট যেটা মনে আসবে সেটাই বলা বেটার। একদমই। এবং তুমি নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছো অনেক সময় আমরা যেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় মিম বা ট্রোলিং দেখি বা কটাক্ষই বা আমি যদি বলি, সেটাকেও মানে লাইটলি তুমি হ্যান্ডেল করে নিতে পারো, মানে যেটা তোমাকে দেখেছি। তুমি যে খুব বেশি রেগে গেলে সেরকম কিন্তু নাও, কিন্তু আমি রেগেছি কিন্তু সেটাকেও নিয়ে মিম হয়েছে যে আমি রেগেছি। সো যখন সব কিছুই নিয়ে মানুষের রিয়াকশন দেয় আমার প্রত্যেকটা বিহেভিয়ার নিয়ে, তা আমার মনে হয় এবার সেটাকেই যদি আমরা হেলদিলি ঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে যাই বা একটা শোয়ের মাধ্যমে আমরা উই ক্যান পুট আপ আ শো, আই থিঙ্ক এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই ধরনের শোতে পার্টিসিপেট করা বলে কি মাথাটা অনেকটা ঠান্ডা রাখা, ঠিক আছে লাইটলি অ্যাকসেপ্ট করবো, রেগে গেলে হবে না, মানে এইরকম কি একটা প্রিপারেশন? জানি না, আমি এমনি নর্মালি আমি কোয়াইট পেশেন্ট, এবং আমার মনে হয় তারা এমনই কথা বলবে যেটা তারা জানে বা যেটার বিষয়ে মানে মানুষে জানে, মানে আননোন কিছু বলবে না। তো আমি এখনও জানি না আমি কীভাবে রিয়াক্ট করবো, বাট নর্মালি আমি ভীষণ পেশেন্ট, তার জন্য শো দেখতে হবে। তো একটু বলো যে কমেডিয়ানদের মধ্যে আমি যদি বলি যে ফিমেল যারা রয়েছে অনেকেই দারুণ কমেডি করে, তো তোমার পছন্দের লিস্টে কারা রয়েছে? সবাই, কেন প্রত্যেকজনের একটা ডিফারেন্ট পদ্ধতি আছে, ডিফারেন্ট ফ্লেভার নিয়ে তারা স্টেজে আসে, ডিফারেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে তারা স্টেজে আসে। তো আমি কিন্তু খুবই এক্সাইটেড প্রত্যেকজনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য। जोरदार तालियां हो जाए नुसरत जी के लिए। आप एक्स पॉलिटिशियन रही हैं, आपने संसद में कई बार लोगों को घेरा है, आज हम आपको घेरने वाले हैं, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया। तो आर यू रेडी? एक्चुअली ये पहली बार ही हुआ है कि मुझे इतने इज्जत से किसी ने बेइज्जती करने के लिए बुलाया। आई एम सो रेडी। हाउ स्वीट। वैसे बचपन के दोस्त हैं, बस एक ही दिक्कत है कि बचपन से लेकर आज तक मिले नहीं है कभी। सोल फ्रेंड जिसको बोलते हैं। वी हैवंट मेट। ओह माय गॉड, सो गुड टू सी यू। बड़े टाइम बाद यार। बैठिए प्लीज अनूप। पहले अनूप जी से शुरू करते हैं, आपको कोलकाता के। अनूप जी प्लीज सवाल ताकि पहला सवाल। बिल्कुल यार, सबसे पहले तो नुसरत इज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, बिरयानी पसंद है, मछली पसंद है, राइट? बचपन से इनको आप सारे नॉन वेजिटेरियन होटल्स रेस्टोरेंट्स में देखते रहेंगे, बट ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में कभी नहीं दिखेगी। नहीं, कभी-कभी दिखती हूँ। स्पेशली जैन रेस्टोरेंट में तो गलती से भी नहीं दिख सकती है। दिखी थी, वो बस डाइजेस्ट नहीं हो पाई है। जैन रेस्टोरेंट को तो पता नहीं, जैन घर में तो गई थी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए, हाँ, वो गेस्ट अप
का रोज था ना, पिक्चरों में होता है। गेस्ट अपीयरेंस से मुझे याद आया, ऐसी आपकी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें सिर्फ आप पोस्टर कर रही हैं, फिल्मों में आपको कुछ खास काम था नहीं। आपको पिक्चर देखी कहाँ? देखिए देखी नहीं, लेकिन मैंने रिसर्च करी। कहीं ऐसा तो नहीं जब आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी आप वहां के लिए भी पोस्टर करती, क्योंकि पार्टी में जाते देखिए पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर लोग आते हैं और अगर मेरे पोस्टर गर्ल होने से भी अगर पिक्चर हिट होता है तो आप सोचो पार्लियामेंट का क्या हाल है। क्या बात है, जोरदार ताली बंदी इस बात पे। भाई आज के इंटरव्यू हो गया। अच्छी बात है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नुसरत, आपने जमाई 420 की है, आपने और भी मूवीज की है जिसमें 420 है। क्या 420 You're being a politician as well. इतनी 420 क्यों है लाइफ में? I like the number. First of all, you look gorgeous. And you and both of you are looking so gorgeous and so identical and Thank you so much. very pretty. Thank you. Okay, so पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आप माँ बने। और जब आप माँ बनी थी तो इस बात से आप नाराज हो गई थी कि डॉक्टर और नर्स बिना नॉक किए आपके होटल हॉस्पिटल रूम में घुस आए थे। जी। आप नाराज हो गई थी। जी। आपको किसी ने बताया नहीं कि ये हॉस्पिटल और आपकी वैनिटी रूम नहीं, कि बिना नॉक किए भी आ सकते हैं? ये फैक्ट बताती हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे या हमारे मीडिया के लोग हैं वो कभी नॉक करके आपके लाइफ में आते ही नहीं है, वो बिना नॉक करके आते हैं। तो उसकी आदत मुझे थी, पर हॉस्पिटल तो रोज आना ज़्यादा नहीं होता। ये बात दैट इज वेरी सैड। तो मुझे आदत नहीं थी। अब मुझे पता है कि हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा ऐसे खुले रहते हैं, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, ओनली डॉक्टर्स एंड नर्सेस। सो सीख थी, अब मैं सीख गई। क्या बात है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, पहले तो आप ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कौन चिंकी कौन मिक्की? अभी आपसे किसने क्वेश्चन पूछा? चिंकी। और मैं कहूँ मिक्की ने पूछा तो? यार तुम पहले डिसाइड कर लो यार। यार वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, उनको खुद पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। उनको चिक्की मिक्की क्या कहता था। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन। सही पकड़े। अच्छा, तो जब आपका एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आप उसकी इस बात से इतने ज्यादा परेशान थी कि वो बार-बार इतना ज्यादा दूध क्यों पीता है? तो क्या आपने ये सोचा था, बच्चों तो देखो दूध तो पीते ही है ना, तो आपने ये एस्टिमेट लगा दिया था कि अगर वो दूध नहीं पिएगा तो पहले डाइट फॉलो शुरू करना? अरे वो एक्चुअली ऐसा था ना कि देखो वो तो माँ के पेट से बेटा बन के ही पैदा हुआ था, पर मैं अपने माँ के पेट से माँ बन के आई नहीं थी। और जैसे कि कहा उन्होंने कि कंफ्यूजन हर किसी को होता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। उसके पहले भी मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। मुझे अगर लाइफ में हर चीज समझ में आ जाती तो मैं आज ये हॉट सीट पे तो बैठती नहीं ना। ओह या, तो आपने अपने बेटे को डाइट करवाई होगी? अरे लगता है, अरे आई तो वांट हिम टू ईट। अभी तो इतना दौड़ाता है कि खाना ही नहीं खाता है। मैं चाहती हूँ कि वो खाए। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना उस वक्त से अभी तक। नुसरत जी आपका मैं माँ बन गई फाइनली। आप अपने बच्चे को दूध पिलाने से आप बार-बार परेशान हैं कि बार-बार उसको फीड कराना पड़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा था बच्चा पैदा होगा प्लेट उठा के सीधा बुफे की लाइन में लगेगा? अरे ऐसा लगा कहाँ, पर ये जो अगर बच्चे को दूध पिलाना भी जो होता है वो हर माँ को कौन सिखाए। आप समझो, हम जो औरतें होते हैं ना वो माँ के पेट से तो माँ बन के आते नहीं है, तो हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो कोई डॉक्टर आके सिखाता है कि ऐसे करना है, कोई नर्स आके सिखाता है कि वैसे करना है, कोई और आके सिखाता है कि ऐसे करना है। अरे करना क्या है? उसके बाद मैंने मुझे खुद को ही समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे ही करना है। So I think finally we all get to know exactly what to do with our own babies and thankfully I will be तो आपका सेकंड बेबी का कोई प्लान है आपके? हो आशा हो गया है। शौक पूरे हो गए आपके? एक संभाल लूं। नहीं, हम तो देखो लकी थे, मम्मा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Hats off to your मम्मा बेटा। वैसे मेरी मम्मा के भी दो हैं। Hats off to my mama also। मैं माँ बनने के बाद अपनी माँ को बहुत बार सॉरी बोली, बहुत बार सॉरी बोली। Definitely. So I would like to compliment you. You're really beautiful. Thank you। तो जब आप एमपी थी, पार्लियामेंट में जब आप जाती थी, आप तो ऐसी सबकी अटेंडेंस बढ़वा देती होंगी। मतलब नेता जो इतने सालों से गायब रहता है, वो आपको देखने के चक्कर में तो अटेंडेंस तो जरूर लगवाता है। एक्चुअली आप कुछ गलत बात तो कर नहीं रहे हैं। अब लोगों का मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर, मैं लोगों का क्या करूं यार? वो मेरे हाथ में नहीं है। बट यही होता है ना प्रॉब्लम कि देखिए मैं पार्लियामेंट में इतनी एक्टिव थी, मैंने इतनी सारी बातें कही और मैं इतनी अपफ्रंट पार्लियामेंटेरियन थी कि आज मैं एक्स पार्लियामेंटेरियन हूँ। हाउ कूल इज दैट? क्या बात है। तो आपने कितने लोगों की अटेंडेंस बढ़वाई? डू यू हैव एन असम्पशन? अब क्या है ना कि हम फैंस को ऐसे गिनती में नहीं रखते। ओह माय गॉड। तो आपको ऑफर तो आया होगा मां कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो?
कौन सी हमारी कौन सी हमारी आपकी कौन सी हमारी कोई नहीं। मैं अभी मैं ना फिलहाल एक ही पार्टी करती हूँ, मैं गाना चलाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, अपने घर में पार्टी करती हूँ, वो बेस्ट और बिलीव मी। अनूप जी, देखो सुना आपने बड़ी धूमधाम से फॉरेन कंट्री में जाके शादी की। जी मैं भी सोच रहा हूँ कभी अगर शादी होती है तो फॉरेन कंट्री नेपाल का मैं पता कर रहा हूँ कैसा क्या सीन रहेगा। एनीवे ऑल द कंट्रीज भूटान बांग्लादेश है पास में, भूटान है पास में, तो शादी तो हो गई, रजिस्ट्री कराना कैसे? वो एक्चुअली वाक्य ऐसा है कि मैं शादी करने में इतना व्यस्त थी कि मैं ढंग से शादी कर नहीं पाई। बिलीव मी दिस इज द फैक्ट। बिजी थी अपन, बहुत बिजी थी शादी करने में बहुत शादी busy में थी। busy थी। और थैंक गॉड नहीं कर पाई तो मेरे एक्सेप्ट में कोई इश्यूज भी नहीं हुआ ना, तो फिर वो नालन वर्ड डिक्लेयर कर पाया ना मस्त। अगर आप कैटरिंग वाले को ठेका दे देती तो बाकी काम वो कर लेता, आप शादी कर लेती। अरे मैं बहुत बिजी थी, सारा काम हमको ही करना था, गजब बात करते हैं। अनूप जी और सवाल है? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे सवाल है। आपकी मूवी आ रही है यश के साथ एंड आड़ी इस मूवी का नाम है। हाँ। ऐसा क्या हुआ शादी के बाद कि आड़ी हो गई एक बार? You know what is आड़ी? I know what is So I'll tell you something very nice. This is not funny यार, don't take it. आड़ी ना उनके साथ किया जाता है जिनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है यार। ये वाला आड़ी, आड़ी के बाद तो फिर भाव भी होता है। बांग्ला है ना आड़ी एंड भाव। Yes. यहाँ भाव का तो मतलब दोस्ती हुई, नहीं यार। इसलिए मैं कहता हूँ या तो इंसान खुद ही कहा ना कि मैं जैन रेस्टोरेंट नहीं चाहती। या तो इंसान जीवित होता है या तो वो विवाहित होता है या तो वो विवाहित होता है। या इंसान जीवित होता है या तो विवाहित होता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इंसान का माने कुछ भी कर ले, या तो जीवित रह ले या तो विवाहित रह ले। आप हैं विवाहित? नहीं सर। नहीं ये देखिए कितने अनमरे लग रहे हैं। मुझे आप ये बताओ, जब एमपी बनता है कोई भी इंसान, वो संसद में जाता है हाँ। तो उसको गाड़ी भी मिलता है और बंगला भी मिलता है। हाँ। तो आपने उनसे कहा कि मुझे गाड़ी सिर्फ नहीं मिलता। गाड़ी दे दो, बंगला तो ऑलरेडी मैं हूँ। कैसे? बांग्ला में हूँ। अरे आप पंच भी खराब करोगे क्या? अरे यार आप ऐसे बंगला बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगता है क्या यार। करना पड़ेगा ना आप? अरे नहीं, ना मुझे बंगला मिला, ना मुझे गाड़ी मिला। अच्छा, तो सैड। क्या बात है। अनूप जी आपके पास सवाल बचा है और जो मिला वो क्या बस क्या ही बात। क्या बताओ, छोड़ दीजिए। देखो सवाल तो बहुत सारे हैं बट आई थिंक सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। दो लोगों को और बुलाने हैं if you allow अरे me. और भी हाँ, दो लोग और हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर बख्तियार एंड तनाज ईरानी जी। मैंने सुना कि आपके नाम की इतनी कंट्रोवर्सीज है, मतलब जितनी फिल्में नहीं है आपके पास उतनी कंट्रोवर्सीज है। अब तो मैं गिनेस बुक में नाम लिखवाने वाली हूँ बहुत जल्द। अच्छा, ओके, दैट विल बी लेटर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जितनी कंट्रोवर्सीज है उसके ऊपर अगर हम एक मिनी सीरीज बनाएं तो 5-6 सीजन्स तो चली जाएंगे आराम से। Has anybody offered you a biopic? Not yet. Not I would yet. love to. I would want them to make इतना मसाला होने वाला है ना that you have no idea. Hit it. Wow, in this short life you have so much masala. I really want to know. I was born garam masala जी. अच्छा, nice. Okay, थोड़ा तड़का और मार। ये बात सच है कि नुसरत जहां कंट्रोवर्सी वहां, इज इट ट्रू? नहीं अभी तो यहाँ तो कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ और ही चल रही है, थैंकफुली नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ। ओके, सो यू वर मैरिड अर्लियर टू निखिल जैन, फिर आपकी शादी यश के साथ हुई, ये सब ठीक है, लेकिन जब आपका बेटा पैदा हुआ तो मीडिया बहुत एक्साइटेड थी और वो जानना चाहती थी किसका बच्चा है, तो आपने जवाब दिया ये बच्चे का बाप तो देवशीष है। तो उसके बाद पता चला कि यश का असली नाम देवशीष है। तो ये क्या था, कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा नुसरत का पति? ऑलरेडी कंफ्यूज थे कि इसका बाप कौन है। जब आपने देवाशीष लिखा था लोग कंफ्यूज हो गए। अब तीसरा भी पिक्चर में आपको पता पूरा मीडिया। अरे तो मैंने भी कहा, मैंने तो मीडिया से ये बोला था कि बाप को बताएंगे, बाप को, अरे तुम्हें क्या बताऊं, ये मैंने कहा था। बट अरे अभी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में देवाशीष नाम लिखा था तो उनको कंफ्यूजन हो गया कि यश का नाम एक्चुअली देवाशीष है। था वो भी था, थैंकफुली उसके बाद हम लोगों ने चेंज कर दिया कि देखा कि ना ये तो गलत जा रहे हैं, ये तो किसी तीसरे पे अब वार होने वाली है, उसको तो खोज के भी मतलब दोनों सेम है ना, दिक्कत हो जाती है। उसका नाम भी हम लोगों ने अभी करेक्ट करवा दिया। हाँ, तो यश इज ओनली यश नाउ, देवाशीष इज गॉन, पुफ। सो आपने एक फिल्म में काम किया था SOS कोलकाता जी, और वहाँ पे उसमें आप पुलिस वाली बनी थी, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि सारे दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे दे हैड ऑल वॉर्न अ बुलेट प्रूफ जैकेट
लेकिन आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था, आपने वो क्रॉप टॉप्स पहने थे। तो आपको क्या लगा कि आप बुलेट से फास्ट भागोगे, या मतलब इतनी बजट नहीं थी कि आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें? What was the real reason? The nation wants to know. But before the nation, we want to know. Super, super. I will answer this. Nobody's ever asked. Very relevant question. नाज जी, बहुत सही सवाल है आपका. वो actually, beauty does not need protection. And I'm a very proud Indian. Well, today I have also said after the Sindoor thing that we have pulled it off so well. I'm very proud Indian. But हाँ, but अभी हम इंडियंस हैं. अगर हम प्रोटेक्शन में इतना विश्वास रखते तो हमारी आबादी की इतनी बर्बादी नहीं होती. क्या बात है? लेकिन ये तो रहा इंडिया का प्रोटेक्शन, लेकिन मैडम आपको तो भी प्रोटेक्शन चाहिए ना? मैं तो इंडियन हूँ ना. कौन से प्रोटेक्शन की मैं बात तो प्रोटेक्शन मतलब एटलीस्ट फ्रॉम द बुलेट यार. वो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही थी बख्तियार. Listen, I was looking so good. अच्छा, I made my abs for the film. Okay, so I made my abs for the film. मैं एकदम डाइट पे चली गई, बहुत वर्कआउट किया, abs बनाया. यार उसको कैसे मैं बुलेट प्रूफ जैकेट से ढक लेती यार. कमर्शियल है, थोड़ा तो क्रिएटिव लिबर्टी भी होता है कि नहीं? तो इट वाज अ क्रिएटिव लिबर्टी. अच्छा, ये बात हॉलीवुड में नहीं जानी चाहिए. बख्तियार जी, आप यही खत्म कर दो. आपका क्वेश्चन? आपका कोई भी क्वेश्चन है? या खबरदार जो तुमने पूछा भी तो. आपका बचा है तनाज़ मैम? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं. 3 बच्चे हैं वो घर पे. यहाँ पे कुछ बचा नहीं है. नहीं, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है. जैसे इन्होंने कहा ना, आपको क्या लगता था कि आप गोली से तेज भाग सकती है? आपको लगा था टेररिस्ट आपको बोलेगा आप साइड हट जाओ, मैं बाकियों पे गोली चला लूं? बात ऐसा है कि टेररिस्ट अगर मुझे वैसे देखता तो बाकियों पे गोली चलाने लायक नहीं रहता. क्या बात है? आपने गाना नहीं सुना? अखियों से गोली मार. मुझे तो गन की भी जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टर ने जबरदस्ती हाथ में दे दिया. मैं आपके कॉन्फिडेंस का कायल हो गया हूं, सच में. क्या कॉन्फिडेंस है? ऐसे ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस. है ना? एक बार जोरदार तालियां. गोली की क्या जरूरत? थैंक यू नुसरत. मेरा मतलब नुसरत. हाँ, थैंक यू. घनघोर, मेरा मतलब विभोर. अनुज जी, आपका कोई सवाल बचा है? नहीं, काफी इतना. नुसरत अरे नहीं, पर यार आप लोगों ने मुझे इतना रोस्ट किया यार, यहाँ पे आके इतना सवाल जवाब किया, कुछ तो मैं भी पूछूंगी यार. प्लीज किससे शुरू करना चाहेंगे? इतनी प्यारी सी यहाँ पे दो परी जैसी सुंदर दिखने में जो लड़की है, जी. दोनों चिंकी मिंकी. Yes. करेक्ट बोला ना? सही पकड़े. हाँ, तो इनको देख के बस एक ख्याल आया, तो चाहती हूँ फरमाना जितने बचे कुछ ऑडियंस है उनके सामने. हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी जब शादी होगी तो इनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी तो बड़ी लॉस होने वाली है. लॉस थोड़ा लॉटरी लगने वाली है. क्या बात कर रहे हो यार, घर में और ससुराल में दोनों एक ही मान. बताओ, लॉस ही हुआ ना. हाँ, सही बात है. बीवी एक जैसी, साली एक जैसी. साली आधी घर वाली होती है. और ये मेरे जो नेक्स्ट आपके मेरे बचपन के भाई नहीं यार, दोस्त. दोस्त. वो भी खुदकुशी कर लेगा ऐसे कैसे? दोस्त. हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त अनूप आरजे है, बहुत बढ़िया काम करते हैं. परफेक्ट काम चुना है इन्होंने. परफेक्ट काम. रेडियो में शक्ल नहीं दिखती, सीना से खुला नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छी. क्या है ना? बात है. तो हमारी जोड़ी, बॉलीवुड जोड़ी के लिए नहीं, मैं तो इनकी फैन हूँ, मैं मैम की फैन हूँ. मैं बचपन से मैम को देख रही हूँ. मैम का एज मत कैसे कि अभी कैसे मत करना है. अब मैम को देख के बस एक ही बात आया कि मैम पहले फिल्में करती, उसके बाद मैम टीवी पे आई, उसके बाद मैम यूट्यूब करने लगी. अब मुझे लग रहा है ऐसा कि मैम अब ब्लूटूथ में भी आएंगी. ये अब कहीं पे भी आ जाएंगी. भाई देखो, रोस्ट तो बराबर हुआ है ना तनाज़ मैम? आई एम अंतर्यामी. अरे यार, रोज तो चिकन भी होता है. अपन तो यहाँ पे नॉर्मल इंसान हैं. बख्तियार जी के बारे में हैंडसम. I had googled about him. मैंने गूगल किया तो गूगल ने कहा कि who is this? तो उसके बाद मैं बैक स्टेज में थी, मेकअप रूम में थी तनाज़ जी. तो फिर मैं मेकअप कर रही थी, तो मेरे टीम के मेंबर ने बोला कि अरे वो तनाज़ का भाई है. तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं जब तक यहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि अरे नहीं, ऐसा लगता है बहुत दिन जब हो जाता है ना शादी में तो पति ना ऐसे भाई के जैसा दिखता है. तो नाउ आई नो हिम. थैंक यू. बाकी कुछ बचा है मेरे लिए? अबे हंसना होता है रोस्टिंग में. हंसो. इसी के लिए बुलाया है, ऐसे स्क्रिप्ट दिए जाते हैं. मेरे लिए कुछ स्पेशल दोस्त
अरे आपके लिए तो स्पेशल होना ही चाहिए, आप ये शो के रनर है भाई, ऐसे कैसे? विभोर चौधरी जी लास्ट चाचा चौधरी पढ़ा था मैंने बचपन में, देखा भी था। ये विभोर चौधरी जाट है। मेरे नजरिए से আমার দেখা সব থেকে ছোট সাইজের চৌধুরী, चौधरी मैंने चाटा ऐसा एक होना चाहिए ना। ये विभोर जी को देखिए, गौर फरमाइए, इज सो स्वीट, नॉट सो दरिंदे जाट पे। मुझे तो लगता है कि कोलकातार चौधरी गुलो इज बिगर देन दिस चौधरी, एंड चौधरी जी इज बेसिकली लाइक आई थिंक द राजपाल यादव ऑफ द चौधरीज। इसीलिए गड्ढा बांटो तो खुद उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। देखा, बहुत अच्छा। खुद के घर अगर शीशे के हो तो कपड़े नहीं बदलने चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। Thank you so much. It's been so lovely. It is such an amazing evening. This is the first time, and I was very nervous, but you all have been very, very not so kind. So that's really nice. Thank you so much. एक बार तालियां बजनी चाहिए।